Hallelujah. I feel good. The role of the Holy Spirit as another comforter. दूसरा मददगार की हैसियत से रूहुल कुद्स का लीडरशिप में किरदार। हम यूहन्ना की इंजील 14वां, 15वां, 16वां बाब, जिसमें दूसरे मददगार का हवाला, टोटल 4 हवाले हैं, जिसमें मसीह ने दूसरे मददगार को इंट्रोड्यूस भी करवाया, उसका रोल भी बताया। एक और मददगार का हवाला है, 5वां हवाला टोटल इन द न्यू टेस्टमेंट, और वो यूहन्ना के पहले खत उसके दूसरे बाब में है, और वो यीशु मसीह के बारे में है। आइए उसको देखें। पहला यूहन्ना दूसरा बाब। ए मेरे बच्चों, पहली आयत से, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर गुनाह करे, अगर लिखा हुआ है, जब नहीं लिखा हुआ, अगर गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। तो खुदावंद को खुद मददगार कहा गया है यूहन्ना के खत में। यही राइटर यूहन्ना की इंजील में 4 रेफरेंसेस हैं जिसमें रूहुल कुद्स को मददगार कहा गया है, और हर एक रेफरेंस का अपना कॉन्टेक्स्ट है, अपना स्याको सबाक है। पहला हवाला 14वें बाब में है, 15 से 17 आयत तक। दूसरा हवाला यूहन्ना की इंजील 14 बाब है, 25 से 31 आयत तक। तीसरा हवाला यूहन्ना की इंजील 15 बाब, 26 आयत से 16 बाब की 4थी आयत तक। चौथा रेफरेंस बतौर मददगार रूहुल कुद्स का यूहन्ना की इंजील 16 बाब, 4थी आयत से 11वीं आयत तक। ये 4 रेफरेंसेस हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने खुद रूहुल कुद्स को मददगार की हैसियत से इंट्रोड्यूस्ड करवाया और बताया भी कि वो क्या करेगा, उसका रोल क्या होगा, मददगार। आइए पढ़ें यूहन्ना की इंजील 14 बाब 15वीं आयत से लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। खुदावंद से मोहब्बत की पहचान और इजहार उसके हुक्मों की तामील, प्रैक्टिकल लाइफ। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे, जोर से बोलिए, अंदर होगा। रूहुल कुद्स तुम्हारे अंदर होगा बहसियत मददगार। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा।
یہ پہلا ریفرنس ہے. اس سے پیشتر کہ ہم آگے جائیں، مددگار، اس کی ڈیفینیشن، اس کا مطلب، اس کے لیے گریک ورڈ پیراکلیٹوس. پارا کا مطلب ہے along side. کلیٹوس the one who is called. ایسا شخص جو آپ کے پہلو میں بلایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کی مدد کرے، کیونکہ ہمیں اور بالخصوص لیڈرز کو مختلف موقعوں پر مدد کی ضرورت ہے. اور یہ مددگار، یہ ہمارے ساتھ پہلو میں بلایا گیا شخص روح القدس ہے، خوبصورت مددگار جس کی مانند دنیا میں کوئی اور مددگار ہے ہی نہیں. یسوع نے وہ مددگار ہمیں بخش دیا ہے. مددگار پیراکلیٹوس، اس کا مطلب تسلی دینے والا بھی ہے. اس کا مطلب وکیل، ایڈوکیٹ بھی ہے، جو ہمیں دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے، ہمارے لیے آرگومنٹس دیتا ہے ان دی سیٹ اپ آف دی کورٹ. کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک پیراکلیٹوس ہے، روح القدس ہے، ایک ایڈوکیٹ کی طرح جو ہماری جنگیں لڑے گا، آرگومنٹس دے گا، دفاع کرے گا، ہمارے لیے جواب دے گا، ہمارے لیے کھڑا ہو جائے گا. روح القدس کے لیے خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو. پھر اس کا مطلب ہے کاؤنسلر، مشیر. پھر پیراکلیٹوس کا مطلب ہے طاقت بخشنے والا. یہ مددگار کی ڈیفینیشن ہے، وہ لفظ جو یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے. اور یہاں پر بہت سی باتیں ہیں، 10 باتیں ہیں جو ریفرنس ہم نے پڑھا روح القدس کے بارے میں. آئیے ان کو دیکھیں. پہلی بات ہے جو ہم نے کی، مددگار. روح القدس مددگار ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں، دوسری بات دیکھ لیجئے، روح القدس بخشنے والا خدا باپ ہے، جو یسوع مسیح کے نام میں اور اس کے وسیلے سے ہمیں پاک روح بخش دیتا ہے. باپ سے صادر ہوتا ہے، باپ اس کا منبع ہے. روح القدس باپ اور بیٹے کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. تیسری بات ہم نے کر لی کہ روح القدس مددگار ہے، مگر جو ضروری بات ہے، یسوع نے کہا کہ وہ دوسرا مددگار ہے. ایک تو وہ خود ہے. یوحنا کے خط میں ہم نے پڑھا آسمان پر ہمارا ایک مددگار ہے. جب ہم گر جاتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، ابلیس ہمیں آزماتا ہے، باپ کے سامنے ایک مددگار یسوع مسیح باپ کی حضوری میں اپنا بیش قیمت پاک خون پیش کرتا رہتا ہے، جو اس نے ہمارے لیے صلیب پر بہا دیا. ہمارا ایک مددگار آسمان پر، ایک مددگار دوسرا زمین پر ہمارے ساتھ، ہمارے اندر، اور وہ روح القدس ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ مدد ہے بحیثیت لیڈرز. ہم بے یارو مددگار نہیں ہیں. ہم کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن خدا نے ہماری کمزوریوں کا علاج کیا اور ہمیں مددگار بخش دیا، اور وہ مددگار روح القدس ہے، اور یہ دوسرا مددگار ہے. لفظ جو دوسرے کے لیے، گریک زبان میں 2 لفظ ہیں جو دوسرے کے لیے استعمال ہوتے ہیں.
ایک لفظ ہے ہیٹروس، اس کا مطلب ہے another but of a different kind، کوئی دوسرا لیکن مختلف قسم کا۔ مثلا دو کتابیں ہیں، ایک ہارڈ بائنڈ ہے، جلد لگی ہوئی ہے، اس کا مواد فرق ہے، ایک اور بھی کتاب ہے وہ دوسری ہے مگر اس سے بالکل ٹوٹلی مختلف ہے another but of a different kind۔ یہ لفظ یہاں پر استعمال نہیں ہوا دوسرے کے لیے، یسوع مسیح نے جو لفظ استعمال کیا وہ دوسرے کے لیے ہے alone، اس کا مطلب ہے another but of the same kind، دوسرا لیکن اسی قسم کا، جس طرح کا یسوع ہے، جس طرح کا یسوع کا مزاج ہے، یسوع کا کردار ہے، یسوع کی شخصیت ہے، یسوع کے انٹرسٹ ہیں، یسوع کی طبیعت ہے، اسی طرح کا دوسرا مددگار روح القدس ہے دوسرا، لیکن میری طرح کا، میری قسم کا، مجھ سے مختلف نہیں، میرے ہی مشن کا، میری ہی طبیعت کا۔ جس طرح میں نے تمہاری کیئر کی ہے، تمہیں ضائع نہیں ہونے دیا، اسی طرح روح القدس تمہارے ساتھ رہے گا، میری طبیعت کا جینٹل ہے، اور وہ تمہارے پاس آئے گا اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہیلیلویا۔ روح القدس اتنا گہرا کلام مسیح نے دے دیا۔ دوسرا مددگار، اس میں تثلیث کی بھی نشاندہی ہوتی ہے، روح القدس کی الوہیت بھی ہے، روح القدس مختلف شخص بھی ہے، لیکن روح القدس کا کردار جس طرح یسوع کا کردار ہے اسی طرح روح القدس کا کردار ہے۔ اس کا شکر ہو جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بخش دیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، روح القدس کے بارے میں ہم نے پڑھا 14ویں باب میں، روح القدس ایک بخشش ہے۔ مسیح نے کہا میں باپ سے درخواست کروں گا، وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ بخشش ہے، اٹس اے گفٹ۔ کوئی شخص کلیم نہیں کر سکتا کہ میں مستحق ہوں روح القدس کا۔ میری گواہی، میری پاور، میری بیک گراؤنڈ، میری ساتھ، میری تعلیم، میرا تجربہ، میری خوبصورتی، کسی چیز سے مروب ہو کر خدا ہمیں روح القدس نہیں دیتا۔ روح القدس صرف ان کو ملتا ہے جن کے دلوں پر یسوع ناصری کا خون لگا ہوتا ہے اور وہ پاک ہو چکے ہیں۔ یہ ملتا مفت ہے لیکن مستحق کوئی نہیں، یہ خدا کی طرف سے بے بیان گفٹ روح القدس کا ہمیں بخش دیا گیا ہے۔ اٹس اے گفٹ۔ ہیلیلویا۔ یہ گفٹ ہمیں دے دیا گیا ہے، اور جو لفظ استعمال ہوا ڈوریا آفر، اس سے دینے والے کی فیاض دلی کا مکاشفہ ملتا ہے۔ اس میں ظاہر ہوتا ہے ہاؤ مچ گاڈ دی فادر لوز اس، باپ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آسمان پر زمین میں جو سب سے قیمتی گفٹ یسوع مسیح کے بعد جو اس نے دیا، جس کی ہمیں ضرورت، جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، جس کے بغیر ہم خدمت نہیں کر سکتے، روح القدس ہمیں بخش دیا۔ بیٹا جاؤ اور دنیا میں میری خدمت کرو، روح القدس تمہارے ساتھ رہے گا، اینڈ اٹس اے گفٹ فار یو۔ ہیلیلویا۔ اگر تالی بجانی ہے روح القدس کے لیے، زوردار تالی۔ ہولی اسپرٹ، روح القدس، اس کی قدر کیجئے، اس گفٹ کی، اس کے لیے حساس رہیے۔ کل ہم بتا رہے تھے اس کے ساتھ شراکت رکھیے،
क्योंकि शराकत दो शख्सों का काम है, एक शख्स अपने साथ शराकत नहीं कर सकता। रूहुल कुद्स के साथ शराकत के लिए रिस्पॉन्स चाहिए, सेंसिटिव होने की जरूरत है, आदी होने की जरूरत है। हम अकेले जिंदगी गुजारने के आदी हो चुके हैं कि नोबडी सीज मी, कोई मुझे नहीं देखता, लेकिन फ्रेब ना खा, रूहुल कुद्स खुदाए सलूस हमेशा तेरे साथ है और तुझको देखता है। ये मिजाज बना ले, आदत बना ले, एटीट्यूड कायम कर ले कि रूहुल कुद्स मेरे साथ है। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवी या छठी बात, यीशु ने कहा वो तुम्हारे साथ होगा, वो रूहुल कुद्स अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। सोचिए इसके बारे, फॉर ऑल द टाइम, अब तक, हमेशा तक, फॉरएवर। रूहुल कुद्स उन लोगों के साथ रहना चाहता है जो यीशु के दोस्त हैं, जो यीशु के भाई हैं, जो यीशु के पैरोकार हैं, यीशु के लिए लीडर्स हैं, यीशु के लिए मारे खाते हैं, यीशु के लिए काम करते हैं, यीशु के लिए वफादार रहते हैं। रूहुल कुद्स ऐसे लोगों पर आशिक है और उनको कभी नहीं छोड़ता और हमेशा उनके साथ रहता है। इसका यह भी फिर मतलब निकला कि ईमानदार कभी तन्हा नहीं होता। अकेला हो सकता है लेकिन तन्हाई का शिकार कभी नहीं होता, क्योंकि बाप, बेटा, रूहुल कुद्स हमेशा 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 अब तक सारी उम्र उसके साथ हैं और तसल्ली देते हैं, लड़ते हैं, ताकत देते हैं, वकील बन जाता है, कभी तन्हा नहीं छोड़। ये कहा कि वो तुम्हारे साथ अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई का रूह, रूहुल कुद्स सच्चाई का रूह है, झूठ का रूह नहीं है। और पाकिस्तान में इसका ऐलान करने की जरूरत है, इसलिए कि झूठ की बदरूहों के कले इस मुल्क के अंदर बड़े मजबूत और बड़े गहरे। हम कोई आर महसूस नहीं करते झूठ बोलते हुए, लेकिन जानिए रूहुल कुद्स सच्चाई का रूह है, झूठ का रूह नहीं। और वो शख्स जो कहता है मैं रूहुल कुद्स से भरा हुआ हूं, मैं रूहुल कुद्स से मामूर हूं, लेकिन फिर वो झूठ बोलता हो, वो फ्रेब देता हो, वो गलत बयानी करता हो, वो ट्रांसपेरेंट ना हो, वो शफाफ ना हो, वो ध्यानदार ना हो, वो तारीकी में रहता हो, वो रियाकार हो, सच्चाई का रूह, इसका मतलब सिर्फ वर्ड्स ऑफ ट्रूथ नहीं है, बल्कि शख्सियत का सच होना, इसमें इंटेग्रिटी का होना, इसमें शफाफियत होना, जो अंदर वही बाहर। खुदा के लोग, खुदा के लीडर, जिनके अंदर ये सालमियत, ये इंटेग्रिटी, ये शफाफियत हमेशा रहनी चाहिए। और अगर सच्चाई के रूह के साथ सोहबत है, सच्चाई का रूह आपके अंदर, आपके साथ रहता, बसता, चलता, दुआ में, कलाम में, शॉप्स में, दफ्तर में, स्कूल में, रूहुल कुद्स की रिफाकत, शराकत मेरे साथ है, तो वो सच्चाई का रूह है और वो मुझे भी सच बनाता जाता है और मैं यीशु की मानद बनता जाता हूं। इस बात पर आज हमें गौर करने की जरूरत है कि क्या मैं सच्चाई का शख्स हूं। यह एक अलग टॉपिक है, हम झूठ क्यों बोलते हैं और इतनी आसानी से क्यों बोलते हैं।
एक ही झूठ बोला था हननिया और सफीरा ने। इंजी ये गल, और बड़े जबरदस्त मेंबर्स थे ये चर्च के, देने वाले थे। सोचो इस पर, रसूलों से इनकी मुलाकात थी। इन्होंने क्या किया? इनकी जमीन थी, इन्होंने कहा हम बेचकर सारी रकम हम चर्च को दे देना चाहते हैं, रसूलों के पांव पर रख देना चाहते हैं कि खुदा के काम के लिए इस्तेमाल हो। ग्रेट आइडिया। इन्होंने बेच दी। हो सकता है गाहक अच्छा आ गया हो, खुदा ने मदद की हो। जब बहुत पैसे आ गए तो रुपए पैसे का लालच जेड़ा सानू नहीं आता, हमें कभी लालच नहीं होता, लेकिन इनको हुआ। दोवें जी सलाई पै गए। साडा ते ख्याल सी ये 40 लाख दी विकेगी, पर ये तो 60 लाख मिल गया। वो कहती है फिर हननिया तू दस की करिए, इंज करने 20 लाख रख लेने, बच्चे भी ने, उन्होंने शादियां करनिया ने, पढ़ाना में बड़ा कुछ करना है, तो 40 लाख दे देने। किसी को क्या पता चलना है? ले गए ये रकम रसूलों के पास। दयानतदारी का म्यार देखिए अर्ली चर्च के अंदर और मुआसना कीजिए कि आज हम कहां पर हैं। जाकर 40 लाख रुपया दे दिया। नहीं जानते कि लीडर जो रूहुल कुद्स की नेमतों से मामूर है, पतरस रसूल, यही रूहुल कुद्स उसके अंदर काम कर रहा है। और उसके अंदर वेव आई, प्रॉम्प्टिंग आई, नो ये रकम ठीक नहीं। वो डिस्टर्ब हो गया और पूछने लगा, हननिया क्या तूने जमीन इतने की बेची थी? आजमाइश आ गई। उथे ही डर जा, कहो जी नहीं, सच बोल। लेकिन कहता हां इतने ही की बेची थी। पतरस कहता है तुमने क्यों अपनी जान से दुश्मनी की है? तुमने खुदा से, तुमने इंसान से नहीं। एक जगह पर लिखा है रूहुल कुद्स से झूठ बोला। रूहुल कुद्स कितना इन्वॉल्व है ईमानदारों की जिंदगी में, बिजनेस में भी, खरीदो फरोख्त में भी। अरे बिजनेस मीटिंग में भी अमाल की किताब 15 बाब वो कहते हैं रूहुल कुद्स ने और हमने मुनासिब जाना कि हम ये फैसला करना चाहते हैं। हर एक बात में रूहुल कुद्स। तूने रूहुल कुद्स से क्यों झूठ बोला? एक कोई झूठ। मेरा ख्याल है इत्थे वज जांदा ते बोर्ड नहीं साढ़े दुआले हो जाओ 40,000 की गल है, 40 लाख भी तो दे ही छड़िया। सुना की हो गया वे? अरे बात पैसों की नहीं, बात तेरी शख्सियत के अंदर झूठ का एक डेंट पड़ गया है। तेरी शख्सियत अब शफाफ नहीं रही, तू रियाकार हो गया। मसीह के बदन में रहते हुए तू झूठ बोल रहा है और तू भटक गया है, बरगश्ता हो गया है। तेरी रूह इन 40 लाख से ज्यादा जरूरी है और तूने सच नहीं बोला, तूने झूठ बोला है इन द मनी मैटर्स। यू हैव लाइट। इस पर बड़ी बातें की जा सकती हैं कि आज हमारा हाल क्या हो चुका है। रुपए पैसे में बदध्यान थी, लेकिन रूहुल कुद्स सच्चाई का रूह है, शफाफ रूह, पाक रूह, रोशनी का रूह जिसमें कोई धब्बा नहीं है। होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स। हमें भी साफ होने की जरूरत है। 7वीं बात, मसीह ने कहा जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। रूहुल कुद्स दुनिया हासिल नहीं कर सकती,
इसलिए कि मसीह बर्रे का खून उनके ऊपर नहीं लगा। रूहुल कुद्स वहां आता है जहां यीशु नासरी का लहू लगा हुआ हो, वहां पर पाक रूह आ जाता है। इसलिए दुनिया हासिल नहीं कर सकती, लेकिन वो शख्स जो यीशु नासरी के खून से धुल गया है, रूहुल कुद्स वो हासिल कर सकता है, बट नॉट द वर्ल्ड। हालेलुया। आठवीं बात, क्योंकि ना उसे देखती ना जानती है, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। रूहुल कुद्स तुम्हारे अंदर होगा। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग, कितनी बड़ी बरकत। और आगे मसीह ने कहा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। कि ईमानदार लीडर कभी यतीम नहीं हो सकता। हालेलुया। कभी यतीम नहीं हो सकता। यस, नेचुरल पेरेंट्स कैन डाई, वो तो मर ही जाते हैं, लेकिन खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्स ऐसी तबीयत दे देता है कि आदमी फील करता है, मेरा माँ बाप मेरे पिछले जिंदा हैं और खुदा कादिर मुतलक मेरा बाप है और मेरे साथ है। ईमानदार कभी 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 यतीम नहीं होता। हालेलुया। इस पर मैं चाहता हूं, इस कॉन्टेक्स्ट पर जिसमें हमने बात की है, इस पर गौर करें। माहौल क्या था जब मसीह ने मददगार इंट्रोड्यूस करवाया? मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, ये 12, 13, 14, 15, 16, 17 बाब, ये सारा एक ही डिस्कोर्स, एक ही सरमन है। वैसे भी यूहन्ना की इंजील का सेटअप कि मसीह ने कहा कि रूहुल कुद्स दूसरा मददगार है, वकील, ये सारा अदालत का सिनारियो है यूहन्ना की इंजील में। पहले बाब में यीशु मसीह, उसकी अलूहियत का जिक्र है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस इन चैप्टर 1। ये यूहन्ना दी इंजील तुहानू दस रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस जो अबद से है, कलाम है, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल सच्चाई से भरकर, खुदा का बर्रा, यूहन्ना की मार्फत, इसका तारुफ मसीह का। और दूसरे बाब से लेकर 12वें बाब की 50 आयत तक यूहन्ना की इंजील में 7 साइंस एंड 7 सरमन्स, 7 निशानात या मौजज़े, 7 वाज यीशु मसीह के मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ लोगों से। लेकिन 13वां बाब, 13वें बाब से 17 बाब की 26 आयत तक जब मसीह अपनी दुआ खत्म करता है, यह मसीह का फेयरवेल डिस्कोर्स, इलवदाई खिताब जमीन पर, आखिरी खिताब शागिर्दों से, इसके 4-5 अबवाब पर मुश्तमिल वास। इसमें रूहुल कुद्स की बाबत बताया। लेकिन यूहन्ना की इंजील का स्ट्रक्चर ले लीजिए, 18वें बाब की पहली आयत से 19 बाब की 42 आयत तक सलीब का वाकया है। 20 बाब पूरे का पूरा मसीह का जी उठना, रेजरेक्शन ऑफ जीसस। और आखिरी बाब 21 बाब, उसमें जी उठा मसीह अपने शागिर्दों से मुलाकात करता, उन्हें बहाल करता, उन्हें मुस्तकबिल बताता। यह यूहन्ना की इंजील का स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर में फीलिंग्स देखिए, माहौल किस किस्म का है।
13वें बाब की 21 आयत लिखा है, यीशु अपने दिल में घबराया कि एक शख्स मुझे पकड़वाएगा, ही विल बिट्रे मी, मुझे फरेब देगा। लफ्जों के इफेक्ट भी तसव्वुर कीजिए क्या हुए होंगे। फिर मसीह ने 23 आयत में कहा, जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, सेपरेशन, मैं जुदा हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। फिर और देखिए क्वेश्चंस हैं। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता। फिर मसीह ने उसे कहा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तू मुझे डिसऑन कर देगा, मुझे ओन नहीं करेगा। माहौल देखिए, घबराहट है, फरेब है, जुदाई है, सवाल है, इनकार है, जज्बात से भरा माहौल, और वो उदास हैं। मसीह ने फिर कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल्ड, तुम गमगीन ना हो। ये माहौल है जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, लेकिन एक मेरी तरह का दूसरा मददगार, मेरी ही तरह का, और मेरी जो बातें तुम नहीं समझते, रोल कुछ आएगा और वो ऐसी मेरी प्रेजेंस होगी, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर मैं बॉडी में रहूंगा मैं सारी जगहों पर नहीं जा सकता, लेकिन जब रूहुल कुद्स आएगा तो वो तुम्हारे अंदर होगा, और लाखों करोड़ों जगहों पर बेयक वक्त मैं यीशु नासरी रूहुल कुद्स की शक्ल में सारी दुनिया के अंदर फैल जाऊंगा। इसलिए कि मैं चाहता हूं और मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। रूहुल कुद्स के लिए शुक्र हो, रूहुल कुद्स की तारीफ के लिए उसकी प्रस्तुति कीजिए जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। इसका मतलब फिर क्या निकला कि रूहुल कुद्स तुम्हारे अंदर आएगा एक मददगार की हैसियत से। जहां कमी तुम होगे, रूहुल कुद्स तुम्हें तसल्ली देगा, तुम्हें मजबूत कर देगा। तुम मुझे मिस नहीं करोगे, तुम मेरी बातों को समझोगे, वो तुम्हें याद कराएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। और ऐसा ही हुआ, बड़े बड़े मौजज़े हुए मसीह की मिनिस्ट्री में और उसकी मौजूदगी में। 4 दिन का लाजर कब्र से बाहर आ गया, एक अट मौजज़ा। मेरा ख्याल है सीढ़ियां बन जांदियां आजकल दे दौर च, कड़ी मुड़ी विखाइयां, इतना जबरदस्त मौजज़ा। पानी को मैं, नाबीना लोगों को आंखें, तूफानों को थमा दिया, मुर्दों को जिंदा, कौड़ियों को पाक साफ। मसीह ने इतने मौजज़े कर दिए। इनका असर क्या हुआ? जब मसीह जाने वाला है तो ये लोग कह रहे हैं कि तू इस्राएल को पॉलिटिकल किंगडम अभी देगा या हम इंतजार करें। दे अंडरस्टूड नथिंग। ये मौजज़ों का इंपैक्ट उन्हें समझ नहीं आई कि यीशु नासरी कौन है, कौन हमारे साथ था। आखिर च पुछंडा ने, क्या तू बादशाही अभी हमें देगा? अभी तक ज़हन जिस्मानी है, मौजज़े इंसान के अंदर मुकाशवा बनकर नहीं आते। आज हम पागल हुए हैं। मौजज़े, शिफाएं सिर्फ जिस्म की कोई बात नहीं करता, अंदर की शिफा, इकोनॉमिकल शिफा, रिलेशनशिप्स की शिफा और दूसरी चीजों की शिफा, फैमिली की शिफा कोई बात नहीं करता। अगर हम आज बात कर रहे हैं पेंटिकास्टल लोग ज्यादातर तो सिर्फ जिस्म की शिफा और गीता के उत्ते जोर चाड़िया है, लेकिन वो मुकाशफात जो खुदा के कलाम में हैं, जो हमें मजबूत करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, हमें मैच्योर करते हैं, हमें बालिग बना देते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। अब गौर करो, जब दूसरा मददगार आ गया, यही शागिर्द पेंटिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स से भर गए।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੋਜ਼ਿਆਂ ਨੇ नहीं किया, वो काम रूहुल कुद्स की हजूरी ने कर दिया। सारी भीड़ जमा हो गई, वो समझ गए सलीब का क्या मतलब है, मर्दों में से जी उठने का क्या मतलब है, यीशु मसीह कौन था, यीशु मसीह दोबारा आएगा, यीशु मसीह रूहुल कुद्स देगा। ये मौजज़ा रूहुल कुद्स की हजूरी से हुआ और ये बड़ा मौजज़ा है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। सारी थियोलॉजी समझ आ गई है भाई रऊफ, सारी थियोलॉजी समझ आ गई। ज़बूर से हवाले, यसाया की किताब से हवाले, ठाक हवाले, कलाम रोशन हो गया। वाय रूहुल कुद्स मददगार अंदर आ गया है। और अब यीशु एक जगह पर नहीं, अब यीशु पाकिस्तान के हर एक शहर में जहां जहां उसके लीडर्स, उसका चर्च, उसके लोग रहते हैं, यीशु नासरी पाक रूह की कुदरत में यहां पर रहता है और समझाता है और मुकाशफा देता है। और इंडिया में, तिब्बत में, चाइना में, रशिया में, अमेरिका में, हर एक मुल्क पर जहां खुदा के खादिम, वहां पर रूहुल कुद्स। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अभी तो एक टेक्स्ट हमने देखी है, रूहुल कुद्स का जिक्र आगे भी है। 25 आयत में मसीह ने फिर रूहुल कुद्स की बात शुरू कर दी 14वें बाब की। मैं ये बातें, ये जो आप सुन रहे हैं, तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार, दैट्स अ सेकंड रेफरेंस, यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए ना डरे। हालेलुया। इस स्याको सबाक में रूहुल कुद्स पेश किया गया है यीशु मसीह के तर्जमान की हैसियत से, कि रूहुल कुद्स इंटरप्रेटर ऑफ जीसस, उसके कलाम का, उसकी शख्सियत का, उसके मिशन का, उसकी फितरत का, उसके रवैये का तर्जमान ओपन करेगा, वजाहत करेगा। रूहुल कुद्स तुम्हारे अंदर मेरा स्पोक्समैन, मेरा मिशन, मेरे काम जारी रखेगा तुम्हारे वसीले से। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें की गई हैं। तीसरी बात, तीसरा रेफरेंस, यूहन्ना की इंजील 15 बाब 26 आयत से वहां पर मसीह ने अदावत का, दुश्मनी का, ठोकरों का जिक्र किया है, मुश्किल हालात का। और फिर मसीह ने कहा लेकिन जब वो मददगार आएगा, 15 बाब की 26 आयत, जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई का रूह जो बाप से सादर होता है, वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो। रोल ऑफ होली स्पिरिट। जब हालात मुश्किल आ जाएं, मुखालफतें आ जाएं, बहरान आ जाएं, तुम्हें इज़हार सानी हो, परसिक्यूट किया जाए, जेलों में डाल दिया जाए, मकान कुर्क कर लिए जाएं, ऐसा हुआ अर्ली क्रिश्चियंस के साथ, तो मत सोचो ईमेल
امریکہ میں جائے گی, یورپ میں جائے گی, مقدمے بنیں گے, کیس ہو جائیں گے. نو, ہولی اسپرٹ, روح القدس وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا, تمہارے اندر ہوگا, اور انہی حالات میں وہ میری گواہی دے گا. ہیلیلویا, وہ میری گواہی دے گا پاورفل طریقے سے, اور دنیا دنگ رہ جائے گی. دو مثالیں بھی یک وقت میرے ذہن میں آ گئی. میں سوچ رہا ہوں پطرس کے بارے, پولس کے بارے. اظہار ثانی میں گواہی, چیلنج فار دی چرچ. آج کے چرچ کے لیے چیلنج, یہ لوگ یسوع کے نام کی گواہی دے رہے تھے. اسٹیبلشڈ سینیگوگز چرچ نروس ہو رہا تھا کہ یہ ہمارا نام لے کر باتیں کر رہے ہیں. تم نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا, لیکن خدا نے بڑی قدرت سے اس کو تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کر دیا. ہم اس یسوع کی بات کر رہے ہیں. تو سارے آ گئے, رسولوں کو اریسٹ کر لیا. غور کیجئے, ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کو کور کور کر کہہ رہے ہیں, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ جیسس. یہ نام ہماری بادشاہی کے لیے خطرناک نام ہے. اس نام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے. ڈونٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. وہاں لکھا ہوا ہے, اعمال کی کتاب میرا خیال ہے 4 باب ہے. وہ سارے نکے رہے پاورفل لوگ جناب, اے بچارے غریب لوگ ساڑھے نال دے, لیکن لکھا ہوا ہے روح پطرس رسول نے روح القدس سے بھر کر وہ میری گواہی دے گا. پرسیکیوشن میں روح القدس سے بھر کر کہنے لگا, یسوع ناصری جسے تم نے مصلوب کیا, وہ پتھر تھا جو تم معماروں نے رد کر دیا, لیکن خدا کی بادشاہی کی بلڈنگ میں یہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. اس کے نام کے بدلے سوائے اور کوئی نجات نہیں ہے. نجات دہندہ یسوع مسیح ہے. روح القدس سے بھر کر گواہی دینے لگے سارے ٹھوس. یہ پاک روح کے کام ہے. کیا چاہیے, ڈالرز یا ہولی اسپرٹ؟ زور سے بولو, کیا چاہیے؟ روح القدس, پاک روح جو اظہار ثانی میں ہمیں قائم رکھتا اور عزت کے ساتھ قائم رکھتا. خالی قائم نہیں, کیسے قائم رکھتا؟ زور سے بولو, ہیلیلویا. ایک حوالہ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے اور 5 منٹ صرف لوں گا, ٹھیک ہے؟ پولس سلاس ٹیم پوری بدرو نکال دی. یاد آ گئی بات, اعمال 16 باب. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, ہم بدرو ہیں آج نکالے تو پیری فکیری شروع ہو جاتی ہے. چاہ پانی لسی ساڑھے کار آیا کرو, ماحول ہی فرق. انہوں نے بدرو نکالی, ساری دنیا خلاف ہو گئی. ان کو اریسٹ کر لیا, کپڑے پھاڑ دیے, بیعت لکھا ہے وہاں پر بہت سے بیعت لگوائے. امیجن خدا کے خادموں کے ساتھ دنیا کیا سلوک کر رہی ہے, ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بھول جاؤ امریکہ, بھول جاؤ یورپ. یسوع ناصری خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کو یاد رکھو, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اور دلیر رہو گے. زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے. ہیلیلویا. اچھا ہوا
स्वीडन वाले घूरी पाण डे ने, चंगा है। बोर्ड वालियां नूं मैं वेखना, हुण की करिए, चंगा हो गया। कहते ने नार्वे वाले भी, जाओ सारी दुनिया हमारी सपोर्ट बंद कर दे, लेकिन खुदा का तख्त फजल से भरा हुआ हमारे साथ है। हालेलुया। बड़े बैंत लगवाए, खून बह रहा है, दर्द हो रही है, नाजायज हुआ है, ये सच्चे हैं। अंदर की कोठरी में डाल दिया, बड़ा जबरदस्त पहरा, फिर भी नहीं। जो मैं शैतान नूं गुस्सा ही चढ़ गया कि मैं कुड़ी चों निकलिया क्यों। यहो ही काम होया। इन्हां ने एक काम किया, मेरा तख्त ढाता ने अंदर की कोठरी में। तो चलो उत्थे ही दरवाजा बाहर बंद है, अगे सिपाही ने पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के वक्त, आधी रात भी पड़ जाती है ना, नेरे भी हो जाते ने। हालेलुया। पैर काठ च होणगे, थले लम्मे पे होणगे, एक दूजे हले वेंदे होणगे। साडे वगैरह हुंदे ते कहंदे तू ही कहना है फिलिपी चलिए। नो, ओहदे हले वेखदा है, ओहदे हले वेखदा है, कहंदा दुआ शुरू करी। ये दुआइया मीटिंग होण डई जे। सीधी आसमान पर रोल कुद्स जुम्बश करना शुरू हो गया। इज़ार सानी में रोल कुद्स का किरदार। जब दुआ करने लगे तो लिखा हुआ है हम्द के गीत गाने लगे। थिंक अबाउट इट। मैं आज पढ़ रहा था मुख्तलिफ तफसीरें, कई तो यहूदी बैकग्राउंड दस दे सन पे, कई बारी तफसीरां मेरा मैसेज ही किल कर देंदियां ने। एक मुफस्सर, चूंकि उर्दू में तर्जमा है उसका हवाला दे रहा हूं, मैथ्यू हेनरी, उसने कहा हो सकता है ये ज़बूर हों जो वो गा रहे हों, कोई चर्च के गीत हों, लेकिन ये भी हो सकता है ये रूह के गीत हों। न्यूमोटोलॉजी, होली स्पिरिट सॉन्ग्स, स्पॉन्टेनियस। आई एम श्योर उनके पास फुल गॉस्पेल गीत की किताब नहीं थी। आई डोंट थिंक सो। अंदर से रूहुल कुद्स बहना जारी हो गया। वो मेरी गवाही देगा जब दुनिया तुमसे अदावत रखेगी, वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। इतनी ऊंची गीत लिखा हुआ है, कैदी सुन रहे थे। यही लिखा है अंदर कहीं कोठड़ी में, किड्डी ऊंची है गाउंदे होंगे। सारी बैरकों में कैदी सुन रहे हैं। आधी रात के वक्त लीडर्स गीत गा रहे हैं, खून बह रहा है, नाजायज बात हुई है, परसिक्यूशन हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ये खुदा के खादिम गीत गा रहे हैं और कैदी सुन रहे हैं। बुंचाल आ गया, हथकड़ियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए, आज़ाद हो गए। लेकिन खुदा की हुजूरी की खूबसूरती इतनी है, किसी ने क्या, किसी कैदी ने एडे एडे वड्डे मुजरम, ये नहीं किसी ने कहा कि दरवाजा खुल गया चलो नसो। किसी ने कहा नो, रूहुल कुद्स की हुजूरी। उन्होंने कहा कैद में हम ज्यादा आजाद हैं, दुनिया में जाने की बजाय कैद में रूहुल कुद्स जुम्बश कर रहा है। वी फील गुड, हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वी विल स्टे हियर। वो तीसरा वाला सी, लेकिन उधरों कन्विक्शन शुरू हो गई है, वो कसूरवार ठहराएगा।
दरोगा जड़ा नैगलीजेंस कर रहा सी ड्यूटी तो, ये भी वो नंबर ढंग सजे, सो गया, रात की ड्यूटी, इसको अलर्ट होना चाहिए। उठा तो समझा कैदी भाग गए, इंज ही होंदा है। लेकिन जब उसने देखा कि सारे कैदी, खुले दरवाजे, खुली हथकड़ियां, सारे यहां पर हैं, बुलंद आवाज से कहने लगा, ए साहिबो हम क्या करें। ए मुजरम 5-10 मिनटां दे बाद साहिब हो गए। हालेलुया। ए साहिबो, सर, अरे ये सर का खिताब मलका बरतानिया ने नहीं, ये सर का खिताब क्रिश्चियंस ने, दुनिया ने दिया इनको कि ये सर्स हैं, ये साहिब हैं। चर्च को कहने लगे, अरे साहब होना चाहते हो, रास्ता मुश्किल जे, इसके लिए खूनो खून हो तो रूह के गीत गाने पड़ते हैं। साहिब का खिताब वैसे नहीं आता, असी एवं सर सर लाई हुंदी है। अरे सर, स्टेटस चेंज्ड, मुजरमों से साहिब, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। आवाज आई, ये नहीं क्या हुण दसो, तुहानूं दसने निजात दा राह, यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। आओ सब खड़े होकर रूहुल कुद्स के लिए खुदावंद का टेढ़ पार के शुक्र करो, दिल से शुक्र करो। अरे वो तो कैद में बुलंद आवाज से गा रहे थे। आओ हाथ उठाओ और उसका शुक्र करो रूहुल कुद्स के लिए, उसकी तारीफ करो, रूह में गाना शुरू करो, तारीफ शुरू करो। पाक रूह यहां पर जुम्बश कर रहा है और तुझे छूना चाहता है, तुझे बरकत देना चाहता है, तेरे साथ रहना चाहता है। ओ तुझे शिफा देना चाहता है, तेरी मिनिस्ट्री को बहाल करना चाहता है, तुझे ताजा करना चाहता है, तेरे अंदर से रूह के दरिया बहा देना चाहता है। पाक रूह के लिए शुक्र करो, पाक रूह से भर जाओ। हालेलुया, ग्लोरी, 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 हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. यीशु तेरा शुक्र, यीशु तेरी तारीफ, यीशु तू मुबारक, यीशु तू कादर मुतलक, यीशु तू खुदा का बर्रा, यीशु तू खुदा का बेटा। यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी भर कर शुक्र करो, जी भर कर शुक्र करो यीशु मसीह का। Hallelujah. Hallelujah. हाथों को बुलंद करके हालेलुया। आसमान पर हालेलुया, जमीन पर हालेलुया,
پاک روح جنبش کر رہا ہے ہمارے درمیان. حساس ہو جائیے. پاک روح چھو رہا ہے. پاک روح برکت دے رہا ہے, آزاد کر رہا ہے. Holy Spirit is here. Rabasora Bashaka Raboso Prasta Barashila Rapasoria Prababago Presta Rabashola Baria Pakaparia Rabaso. Rabasholia Brababaka Babia Ramastora Maselia Presta Ramashola Paria Rabasobria Prapagabaraso Presta Rabalabaria Shokrabaso Barasondarano Presto Rabashala Biria Prapasorabala Presto Rabashipra Babobo. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Amen. 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 God bless you.